Suppose this is the source of light where light is emitting. This is the monochromatic source of light, and this is the light waves which is coming from the monochromatic source. This light is passing through the slit. We consider a slit. This is the slit S1 and S2. This is slit S1. This is slit S2. And suppose we consider a screen. Suppose this is the screen, and after interference, light is passing through the slit like this. And there is the diffraction of light, and both lights are superimposed on the screen. This is the monochromatic source, and this is the point P at which lights are superimposed on each other. Before interference, intensity of light is I1 and I2. Then total intensity before interference. Total intensity before interference on the screen. Before interference on the screen. I is equal to I1 plus I2. Okay. After interference through the slit S1 and S2, after interference through the slit S1 and S2, we want to calculate the average intensity of light both the slits. Then average intensity after interference. Average intensity after the interference. This is the maximum intensity plus minimum intensity upon 2. Then average intensity after the interference, I is equal to, you know that formula of the maximum intensity, this is root I1 plus root I2 to the whole square, and minimum intensity root I1 minus root I2 to the whole square upon 2. Okay, then we are taking the average. We expand a plus b to the whole square. This is I1 plus I2 plus 2 root I1 into root I2 and plus I1 plus I2 minus 2 root I1 into root I2. Okay, and this plus 2 root I1 root I2 is cancelled out,
and upon 2. Then average intensity of light after the interference, I is equal to I1 plus I2. This is the average intensity of light after interference. And suppose this is the equation number 2. Okay. Then from equation 1 and equation 2, both are same. From equation 1 and equation 2, intensity of light is same. Intensity of light, एक मिनट जरा एक फोन आ रहा है. हेलो हेलो. हाँ यस सर. यस सर, अभी जस्ट मेरा इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज सेम. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जरा ध्यान से देखो, दोनों में लाइट की इंटेंसिटी सेम आ रहा है ना. तो अगर लाइट की इंटेंसिटी अगर सेम है तो इट मींस दैट देयर इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. Therefore there is conservation of energy. Okay. It is proved. तो देखो, इंटरफेरेंस के पहले और इंटरफेरेंस के बाद दोनों केस में टोटल इंटेंसिटी सेम आ रहा है. इंटरफेरेंस के पहले कितना आया था, I1 प्लस I2, और आफ्टर इंटरफेरेंस भी कितना आ रहा है, I1 प्लस I2. मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिफोर इंटरफेरेंस और आफ्टर इंटरफेरेंस क्या है, सेम है. इट मींस यहाँ पे एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है. ठीक है, इज इट क्लियर? ओके. तो यही तुम्हें प्रूव करना था, एग्जाम में ये प्रूव करने के लिए आता है. ओके, आगे बढ़े फिर. ओके, तो अगला टॉपिक है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. Intensity distribution curve. Okay. The graph between the intensity of light and path difference is called intensity distribution curve. Okay. मतलब तुम्हें इंटेंसिटी और पाथ डिफरेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है इन केस ऑफ इंटरफेरेंस. ओके, दिस इज इन केस ऑफ इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस के केस में तुम्हें इंटेंसिटी का ग्राफ प्लॉट करना है. ठीक है. और देखो, मैंने तुमको एक चीज बताया था कि जितने भी मैक्सिमा होते हैं सारे मैक्सिमा का इंटेंसिटी सेम होता है, और जितने भी मिनिमा होते हैं सारे मिनिमा का भी इंटेंसिटी क्या होता है, सेम होता है. ठीक है. ओके. देन वी कंसीडर y एक्सिस, suppose y axis, and this is the x axis. Now we draw the maxima and minima. Suppose central maxima is on the y axis. ये देखो, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये देखो सेंट्रल मैक्सिमा. तो सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी हमेशा क्या होती है, मैक्सिमम होती है. तो देखो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है. ठीक है. अब देखो, ये सेंट्रल मैक्सिमा के जस्ट बगल में
इस पॉइंट पे ये तुमको क्या मिल रहा है, मिनिमा। इन दोनों पॉइंट पे देखो ये तुम्हें क्या मिल रहा है, मिनिमा। ओके, फिर मिनिमा के बाद फिर से तुम्हें क्या मिलेगा, फिर से क्या मिलेगा, मैक्सिमा। ओके, और देखो, हाँ हाँ, जस्ट लाइक दिस इज मिनिमा और फिर मैक्सिमा। तो इस तरह से मैक्सिमा मिनिमा जो होगा कॉन्टिन्यूस जो है तुमको मिलता रहेगा, ठीक है। और देखो जितने भी मैक्सिमा मिल रहा है सारे मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम है। ये जितने भी मैक्सिमा है सारे मैक्सिमा की इंटेंसिटी जो है सेम है। ओके, और ये जो एक्स एक्सिस है, दिस एक्स एक्सिस इज द पाथ डिफरेंस, दिस एक्स एक्सिस is the path difference, and this y axis is the intensity of light. Okay, तो देखो मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला। मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है, मैंने बताया था ना कंडीशन, n माइनस हाफ लैम्डा, यही था ना। दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा, दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा, पाथ डिफरेंस p इज इक्वल टू n माइनस हाफ लैम्डा, ठीक है। ये सब फार्मूला याद रखो, ठीक है, सब फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह मैक्सिमा और मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन था, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस एन लैम्डा ना, पाथ डिफरेंस क्या है, एन लैम्डा। ओके, ये सब याद रखना। तो देखो ये तुम्हारा देखो सेंट्रल मैक्सिमा के जस्ट बगल में मिनिमा जो दिख रहा है इसको बोला जाएगा प्राइमरी मिनिमा। क्यों प्राइमरी मिनिमा बोल रहे हैं, क्योंकि ये सेंट्रल मैक्सिमा के जस्ट बगल में है। तो प्राइमरी मिनिमा के लिए एन कितना होगा, व्हाट इज एन, हाँ में एन की वैल्यू क्या है, क्या होगा, प्राइमरी मिनिमा है ना। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, प्राइमरी का मतलब होता है 1 और प्राइमरी मिनिमा। तो प्राइमरी मिनिमा अगर है तो इट मींस n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा, p इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ इंटू लैम्डा। ओके, तो कितना आएगा, दिस इज लैम्डा बाई 2। तो इट मींस ये प्राइमरी मिनिमा कितना है, दिस इज लैम्डा बाई 2। और बताओ इधर कितना होगा, माइनस लैम्डा बाई 2। ओके, फिर n की जगह 2 रख देना, तो n की जगह 2 रखेंगे तो माइनस 3 लैम्डा बाई, सॉरी प्लस 3 लैम्डा बाई 2। और इधर कितना होगा, माइनस 3 लैम्डा बाई 2। ओके, और ये क्या है 5 लैम्डा बाई 2, तो ये कितना होगा, माइनस 5 लैम्डा बाई 2। ओके, और ये क्या है मैक्सिमा, प्राइमरी मैक्सिमा। तो प्राइमरी मैक्सिमा के लिए n कितना लेंगे, प्राइमरी मैक्सिमा नहीं, n कितना होगा, हम पूछ रहे हैं n कितना होगा। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, अभी मैंने क्या बताया, n इज इक्वल टू 1। अभी मैंने क्या बताया, प्राइमरी का मतलब n इज इक्वल टू 1, तो इट मींस p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा। ओके, तो ये जो प्राइमरी मैक्सिमा जो है, प्राइमरी मैक्सिमा के लिए ये कितना होगा, दिस इज लैम्डा। ओके, और ये देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है सेकेंडरी मैक्सिमा। तो बताओ सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए n कितना होगा, 2, तो दिस इज 2 लैम्डा। ओके, प्राइमरी मैक्सिमा कितना था, लैम्डा, और सेकेंडरी मैक्सिमा क्या है, 2 लैम्डा। इसी तरह बताओ लेफ्ट हैंड साइड में, देखो लेफ्ट हैंड साइड में प्राइमरी मैक्सिमा क्या होगा, माइनस लैम्डा, और सेकेंडरी मैक्सिमा क्या होगा, माइनस 2 लैम्डा। ओके, and this is the intensity distribution curve, this is the graph between intensity and the path difference. Okay,
इज इट क्लियर? एग्जाम में आकर ड्रॉ कर लोगे? ओके, चलो ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं। तो इंटरफेरेंस में देखो, नहीं लेफ्ट वाला सेकेंडरी नहीं है, अभी मैंने क्या बताया। ये मैक्सिमा का मतलब क्या होता है? मैक्सिमा मतलब ये जो ऊपर जो तुम्हें मिल रहा है, ये ऊपर जो पॉइंट मिल रहा है, जैसे देखो ये पॉइंट ए दिख रहा है तुम्हें और ये पॉइंट बी दिख रहा है, ये पॉइंट ए पॉइंट बी दिख रहा है जो मैंने लिखा है। तो ये पॉइंट ए पॉइंट बी को क्या बोला जाए? मैक्सिमा। सेम इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में भी तो मैक्सिमा है ना। जैसे ये देखो, ये क्या है? ए डैश, और ये क्या है? बी डैश। अरे भाई ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश तो मैक्सिमा है ना। तो ये जो मैक्सिमा जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में है, और ये ए और बी जो मैक्सिमा जो है दिस इज इन राइट हैंड साइड। और ये जो एक्स एक्सेस पे जो तुम्हें पॉइंट मिल रहा है, ये जो लोएस्ट पॉइंट मिल रहा है जैसे लैम्डा बाई 2, हाँ ये मिनिमा है। सेंट्रल मैक्सिमा के बगल वाले को क्या बोलते हैं? प्राइमरी मिनिमा। ठीक है, फिर प्राइमरी मिनिमा के बाद क्या आएगा? प्राइमरी मैक्सिमा। फिर प्राइमरी मैक्सिमा के बाद क्या आएगा? सेकेंडरी मिनिमा। और सेकेंडरी मिनिमा के बाद क्या आएगा? सेकेंडरी मैक्सिमा। ओके, मिनिमा मैक्सिमा, मिनिमा मैक्सिमा। ओके। हम्म। तो अगला टॉपिक है एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, first of all we draw the screen. Suppose this is the screen and light is passing through the slit and its interference on the screen. Okay, there is the interference of light through the slits. Okay, and you know that this is the slit S1 and this is the slit S2, and just opposite to the slit there is point on the screen which is known as the central maxima. Okay, C is the central maxima, and this is just opposite to the slits. Okay, this is just opposite to the slits. It cover an angle on both sides of the central maxima. Okay, this is angle theta and this is angle theta. Okay, and this is the distance x, and distance between the slit and screen is capital D. Distance between the slit and screen is capital D. Okay, तो हमें एंगुलर विड्थ निकालना है, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। दिस इज 2 थीटा। तो देखो सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ एंगल कितना बन रहा है? दिस इज 2 थीटा।
तो एंगुलर विड्थ अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा। ओके, तो देखो थीटा कैसे निकालेंगे। थीटा निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल लेंगे। दिस इज अ ट्रायंगल ओ सी बी। आई थिंक ट्रायंगल ओ सी बी तुमको दिख रहा होगा। तो ट्रायंगल ओ सी बी में tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इज x अपॉन d एंड यू नो दैट एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल। तो एंगल थीटा अगर स्मॉल है तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन d। ओके, क्योंकि तुम्हें पता है कि स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा जो होता है वो थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा दिस इज 2 इंटू एक्स अपॉन डी। ओके, x क्या है, व्हाट इज x? x इज द डिस्टेंस ऑफ द ब्राइट फ्रिंज, डिस्टेंस ऑफ द ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। और x का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, दिस इज n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। या बताओ x अपॉन d, x अपॉन d किसके इक्वल होगा? n लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ओके, तो बताओ व्हाट इज अल्फा? देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन d की वैल्यू पुट कर दो, तो दिस इज 2n लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ओके, और सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा के लिए n की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए n की वैल्यू 1 होती है। तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो देखो ये आ गया, दिस इज एंगुलर विड्थ। तो ये जो अल्फा जो है, दिस इज द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, 2 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। आगे समझ में? ओके, तो ये तो था, दिस इज अबाउट द इंटरफेरेंस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो एक छोटा सा एक और टॉपिक है, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। देखो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस और ये जो इंटरफेरेंस है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम चीज ही होता है। सस्टेन्ड, SUSTAINED, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। तो देखो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मतलब यह होता है, या इसको देखो इसका एक और नाम होता है, दिस इज अनदर नेम इज परमानेंट इंटरफेरेंस। परमानेंट इंटरफेरेंस। ओके, when position of maxima and minima is fixed on the screen. When position of maxima and minima is fixed on the, fix मतलब sustained, fix का मतलब sustained होता है, on the screen, it known as sustained interference. Okay, it known as sustained interference. आगे समझ में? अगर स्क्रीन पे मैक्सिमा और मिनिमा का पोजीशन अगर फिक्स है तो उसी को क्या बोला जाता है? सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। ठीक है, ओके। तो ये तो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दिस इज न्यू टॉपिक। ओके, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो तो देखो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई शेयर some PPT related to this topic.
Now I will discuss about the diffraction of light. Diffraction of light means bending of light. When waves encounter obstacles, the bending of waves around the edges of an obstacle is called diffraction. If light bends at any corner, then it is known as the diffraction of light. Just like there is some pictures on the screen. This is the plane wave front. After incident on the slit, it converts into the spherical wavefront. It means that there is the bending of light through the slit AB. Here we have a source emitting waves having plane wavefront. As the wavefront pass through the slit, they are diffracted and are able to reach even those regions behind which they would be unable to reach had the rays not. पीछे स्क्रीन में ये देखो, ये प्लेन वेवफ्रंट है और स्लिट से पास करने के बाद ये स्फेरिकल वेवफ्रंट में चेंज हो रहा है. ओके, ये चीज हम लोगों ने हाइजेंस प्रिंसिपल में पढ़ा था. ये देखो, देयर इज सम पिक्चर रिलेटेड टू द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ये देखो, तुम्हें ये प्लेन वेव फ्रंट दिख रहा है और ये जैसे ही स्लिट से पास किया, देन इट चेंज इनटू द स्फेरिकल वेव फ्रंट लाइक एज अ वेव्स. ये देखो, ये जैसे सपोज मान लो कोई एक साउंड वेव्स है, ये देख रहे हो, ये स्लिट से पास कर रहा है. तो देखो यहाँ पे तुमको कुछ बैंड्स दिख रहे हैं. ये देखो, पिंक कलर के कुछ बैंड्स दिख रहे हैं. तो ये जो सेंटर वाला जो बैंड है, इसकी विड्थ सबसे ज़्यादा है और ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, बैंड की जो थिकनेस जो है वो कम हो रही है ना. और जो सेंट्रल पे जो बैंड है, सेंट्रल पे जो विड्थ जो है वो सबसे ज़्यादा है. ओके, हाइजेंस प्रिंसिपल क्या होता है ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था. Each particle lying on any wavefront act as an independent secondary source and emits from itself secondary spherical waves. After a very small time interval, the surface tangential to all these spherical wavelets give the position and shape of the new wavefront. It will be more clear from the following example of plane wavefronts. तो देखो, ये चीज हम लोगों ने हाइजेंस प्रिंसिपल में हम लोगों ने पढ़ा था कि every point on a primary wavefront act as a new source of lights and it emits a particle which is known as secondary wavelets ना. यही था ना हाइजेंस प्रिंसिपल. ओके, ये देखो, ये तुम्हारा जो है ये स्फेरिकल वेवफ्रंट्स क्रिएट कर रहा है. The dimension of the slits are finite. As a result, applying Huygens principle, we can say that new wavefront obtained will be something like the surface shown in the figure. Type of diffraction, there are two type of diffraction, Fresnel diffraction, Fraunhofer diffraction. तो बेसिकली देखो, हम लोग को यहाँ पे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी करना है. ठीक है, देखो दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत ही माइनर डिफरेंस है. फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि सोर्स ऑफ लाइट इज एट इन्फिनिटी, और जबकि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि सोर्स ऑफ लाइट इज वेरी क्लोज टू द स्लिट्स. ठीक है, दोनों में बस यही फर्क है. फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में सोर्स ऑफ लाइट इन्फिनिटी पे होता है और जबकि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में सोर्स ऑफ लाइट स्लिट के काफी क्लोज होता है. ये देखो, ये तुम्हें दिख रहा है सामने स्क्रीन पे. फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में देखो सोर्स जो है काफी क्लोज है और जबकि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में ये जो लाइट जो आ रहा है दिस इज फ्रॉम इन्फिनिटी. हाँ, फ्रॉनहोफर में देखो, फ्रॉनहोफर में जो लाइट जो आ रहा है वो इन्फिनिटी से आ रहा है. ओके, ठीक है. फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड सोर्स ऑफ लाइट एज वेल एज बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज फाइनाइट, the diffraction is called Fresnel diffraction. Fresnel diffraction, the waves are either spherical or cylindrical. Sorry. If light incident on a slit is coming from infinite distance, the distance between obstacle and screen is infinite, the diffraction is called Fraunhofer diffraction. Fraunhofer diffraction, the incident waves should have plane wavefront. Okay, ये देखो, ये एक्स रे का डिफ्रैक्शन हो रहा है. खैर, एक्स रे का डिफ्रैक्शन तो हम लोग को नहीं पढ़ना है, ये हम लोग के सिलेबस में नहीं है. X-ray have wavelength comparable to the atomic sizes and spacing about 10 to the power minus 10 मीटर. ओके, तो देखो, किसी भी चीज का डिफ्रैक्शन तभी होता है जब उसका जो वेवलेंथ जो है वो
साइज ऑफ स्लिट्स के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। डिफ्रैक्शन अकर इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी क्लोज टू द साइज ऑफ स्लिट, ओके। क्रिस्टल एंड मॉलिक्यूल्स रिफ्लेक्ट एक्स-रे इन स्पेसिफिक पैटर्न्स डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर्स। तो जैसे देखो जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल में हम लोग एक्स रे को पास करते हैं। क्यों एक्स रे को पास करते हैं? क्योंकि एक्स रे के जो जो क्रिस्टल के जो एटम्स होते हैं उनका जो साइज जो होता है वो एक्स रे के वेवलेंथ की क्या होता है, इक्वल होता है। तो इट मींस देयर इज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का डिफ्रैक्शन होता है और हमें एटम्स का साइज पता चल जाता है कि मींस व्हाट इज द साइज ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टल। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज यूज्ड to calculate the size of atoms in a crystal. Interaction of X-ray with atoms, ये देखो X-ray इंसिडेंट हो रहा है, ये इसका एटम के साथ इंटरेक्शन हो रहा है और एटम के साथ इंटरेक्शन होने के बाद ये देखो ये जो है ये वेव्स क्रिएट कर रहा है। तो ये जो वेव्स जो है इसी के थ्रू हम लोग को ये पता चलता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ एटम्स। ये देखो ये लाइट देखो इंसिडेंट हो रहा है ऑन द एटम्स ऑफ अ क्रिस्टल। फिर लाइट देखो बेंट हो रहा है और बेंट होने के बाद ये देखो ये लाइट जो है एंगल कितना बना रहा है, थीटा। और ये जो स्पेस जो है दिस इज द डी साइन थीटा और ये जो डी साइन थीटा जो होगा दिस इज इक्वल टू द पाथ डिफरेंस एन लैम्डा, ओके। तो उससे हमको पता चल जाएगा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, दिस इज डी, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। ये देखो 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, दिस लॉस इज नोन एज द ब्रैग्स लॉ। खैर ये सब तुमको नहीं पढ़ना है, केवल इतना जान जाओ इससे हमको ये पता चल रहा है कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द साइज ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टल। यस, लाइक दिस इज द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सिंगल स्लिट होता है, इंटरफेरेंस में डबल स्लिट होता है और जबकि डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट होता है, ओके। ये देखो ठीक है, ये देखो ये प्लेन वेव फ्रंट है, स्लिट से पास कर रहा है, तो ये क्या दे रहा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ओवरऑल दिस इज द पीपीटी रिलेटेड टू द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो द बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू एनी ऑब्स्टेकल और एंड कॉर्नर इज नोन एज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे ये देखो इंटरफेरेंस में हो रहा था ना, ये देखो ये जरा ध्यान से देखो, ये जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट जो है यहाँ से जो लाइट जो आ रहा है ये S2 पे इंसिडेंट हो रहा है और देखो S2 पे इंसिडेंट होने के बाद यहाँ पे देखो S2 पे लाइट जो है बेंट हो रहा है ना। तो इट मींस S2 पे लाइट का S2 पे स्लिट S2 पे लाइट का डिफ्रेक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि लाइट बेंट हो रहा है, ओके। तो लाइट अगर किसी कॉर्नर पे पड़ने के बाद अगर बेंट हो रहा है तो उसी को क्या बोला जाता है, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। द बेंडिंग ऑफ लाइट through any corner or slits is called diffraction of light, ठीक है। And you know that type of diffraction, तो देखो डिफ्रैक्शन दो तरह का होता है, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। There are two types of the diffraction.
सबसे पहला होता है फ्रेस्नेल, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, और दूसरा होता है फ्रॉनहोफर। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ओके, तो डिफ्रैक्शन दो तरह का होता है। इसमें बेसिकली हम लोग को स्टडी करना है अबाउट द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल ने, हाँ, source of light is at infinitive. Fraunhofer diffraction of light. Fraunhofer diffraction of light. Okay. So देखो, first of all we draw the diagram. We considered monochromatic source of light which is at the infinitive. Okay. And it emits the light. ये light को emit कर रहा है, ये देखो, this is the light waves, and this light wave is passing through the slits. स्लिट से पास कर रहा है, ये देखो, this is the convex lens. Light waves is passing through the convex lens. You know that when light is coming from the infinity, then after passing through the convex lens, this is parallel to the axis. Okay, ये तो तुमने पढ़ा होगा कि कोई भी लाइट वेव्स अगर अगर सपोज मान लो कि सोर्स ऑफ लाइट अगर इन्फिनिटी पे है और कॉन्वेक्स लेंस पर जब वो इंसिडेंट होगा लाइट वेव्स, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा ना। तो देखो ये जो लाइट वेव जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है आफ्टर द रिफ्रैक्शन। ओके, दिस इज पासिंग थ्रू द स्लिट AB। ये देखो तुमको यहाँ स्लिट AB को इतना चौड़ा दिखाया जा रहा है, बट रियलिटी में स्लिट जो होता है वो इतना चौड़ा नहीं होता है। ठीक है, इसकी विड्थ जो होती है बहुत ही कम होती है, इन ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर, इन ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर। ओके, अगेन दिस इज पासिंग थ्रू द अनदर कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो ये फिर से एक दूसरे कॉन्वेक्स लेंस से पास कर रहा है। ठीक है, ये देखो, अब देखो, अब बताओ ये जो पैरेलल लाइट जो है, ये जब यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, तो बताओ ये इस लाइट को कन्वर्ज करेगा। तो जब इस लाइट को कन्वर्ज करेगा तो कन्वर्ज होने के बाद ये फोकस हो रहा है एट द सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, सेंट्रल मैक्सिमा पे ये फोकस हो रहा है।
ओके ओके। अब अगर मान लो इस स्लिट को अगर हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, देखो इसमें हम लोग को करना क्या है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और इंटरफेरेंस दोनों में सेम चीज है। जैसे हम लोगों ने इंटरफेरेंस में कंडीशन निकालना था मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, सेम वही चीज मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन तुम्हें डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी निकालना है, ठीक है। तो मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन हमें फाइंड आउट करना है इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जैसे हम लोगों ने पिछली बार किया था ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो मैक्सिमा का कंडीशन था एन लैम्डा और मिनिमा का कंडीशन था एन माइनस हाफ लैम्डा। तो वही सेम कंडीशन तुमको यहाँ पे भी निकालना है, ओके, मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए। अब देखो ये स्लिट है और सपोज ये स्लिट जो है थीटा एंगल पे रोटेट कर रहा है, ठीक है, दिस इज रोटेटिंग थ्रू एन एंगल। ये देखो ये लाइट जो है ये थीटा एंगल पे रोटेट हो रहा है। और यहाँ पे इसको जो सामान है वो लिखना है, यहाँ पे तो ये तुमको यहाँ स्क्रीन पे ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है, दिस इज द ब्राइट फ्रिंज बी, ओके। और सपोज इस ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस क्या है फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, एक्स। ये ब्राइट फ्रिंज का सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस क्या है, दिस इज एक्स। और बताओ स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, डी, कैपिटल डी। स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, कैपिटल डी, ओके। अब देखो we draw the perpendicular from the slits, ये देखो ये पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है, दिस इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए एंड दिस परपेंडिकुलर इज एम। ठीक है, ये देखो तो ये जो है ये स्लिट कितने एंगल पर रोटेट हो रहा है, थीटा। तो ये स्लिट अगर थीटा एंगल पर रोटेट हो रहा है तो ये सारे के सारे लाइट्स जो है ये भी सेम एंगल पे रोटेट हो रहा है, थीटा, ओके। एंड दिस एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर स्लिट को रोटेट किया जाता है तो सारे के सारे लाइट्स जो होते हैं लाइट्स भी रोटेट करता है। पहले लाइट तुम्हारा पॉइंट सी पे फोकस हो रहा था, लेकिन जब स्लिट को जब रोटेट किया जा रहा है तो ये सारा लाइट जो है पॉइंट बी पे फोकस हो रहा है, ओके। और अगर मान लो इन सारे लाइट वेव्स का अगर फेज अगर सेम है तो ये तुमको यहाँ पे क्या देगा, ब्राइट फ्रिंज। लेकिन सपोज अगर इन सारे लाइट वेव्स का फेज अगर अपोजिट है तो ये तुमको यहाँ पे क्या देगा, डार्क फ्रिंज, ओके। अगर सेम फेज का लाइट है तो ब्राइट फ्रिंज देगा और अपोजिट फेज का लाइट अगर है तो डार्क फ्रिंज देगा, ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू कैलकुलेट द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, या इसी का एक दूसरा नाम होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी का दूसरा नाम है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या है, bm, bm इज द पाथ डिफरेंस। कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमको ट्रायंगल लेना होगा, ट्रायंगल abm। अब बताओ इस ट्रायंगल abm में थीटा के अपोजिट क्या है, परपेंडिकुलर, देन साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ab, ओके, या bm इज इक्वल टू ab साइन थीटा, ओके। अब बताओ यहाँ जो AB जो है दिस इज द साइज ऑफ स्लिट, और सपोज साइज ऑफ स्लिट क्या है, A, साइज ऑफ स्लिट क्या है, A।
तो ये हमको मिल जाएगा बी एम इज इक्वल टू ए साइन थीटा। बी एम इज इक्वल टू ए साइन थीटा। व्हाट इज ए? ए का मतलब है साइज ऑफ स्लिट, मतलब है साइज ऑफ स्लिट, एंड दिस इज इन ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर। दिस इज इन ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर। ओके, अब देखो, तो ये हमको मिल गया पाथ डिफरेंस। यहाँ पे बी एम का मतलब होता है पाथ डिफरेंस। यहाँ पे बी एम का मतलब है पाथ डिफरेंस। एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, फॉर मैक्सिमा, जरा ये बताओ मैक्सिमा के लिए इंटरफेरेंस में क्या कंडीशन था, बता सकती हो? क्या था? नहीं, कंडीशन कंडीशन हम पूछ रहे हैं। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या था मैक्सिमा के लिए? एन लैम्डा था ना? नो, एन लैम्डा मैक्सिमा के लिए। मैक्स हम्म हाँ ठीक, बिल्कुल सही। बट देखो डिफ्रैक्शन में क्या क्या होता है, डिफ्रैक्शन के केस में ये कंडीशन जो होता है आपस में चेंज हो जाता है। मतलब इंटरफेरेंस में जो कंडीशन मैक्सिमा था, डिफ्रैक्शन में वो कंडीशन मिनिमा का होगा, ठीक है? हाँ, और इंटरफेरेंस में जो कंडीशन मिनिमा का था, वो डिफ्रैक्शन में वो कंडीशन जो होगा वो मैक्सिमा का होगा, ठीक है? हाँ हाँ। तो अब जैसे अगर मान लो सपोज अगर हमें पाथ डिफरेंस निकालना है, तो बताओ यहाँ मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस क्या लेंगे डिफ्रैक्शन के केस में? हुँ? अभी मैंने क्या बताया? अभी मैंने बताया ना कि इंटरफेरेंस में जो, नहीं भाई, इंटरफेरेंस में जो कंडीशन मिनिमा का था, डिफ्रैक्शन में वो कंडीशन मैक्सिमा का होगा। हाँ, ये n प्लस हाफ, हाँ n प्लस हाफ लैम्डा। ओके, एंड सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर। अब जरा ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 भी क्या है? पाथ डिफरेंस। और इक्वेशन 2 भी क्या है? पाथ डिफरेंस। तो दोनों पाथ डिफरेंस है, तो इट मींस दोनों आपस में क्या होगा? दोनों इक्वल होगा। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो बताओ ये जो तुम्हारा जो a sin थीटा है, ये a sin थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? n प्लस हाफ लैम्डा ना? दोनों पाथ डिफरेंस है ना, तो दोनों पाथ डिफरेंस आपस में इक्वल होगा। तो a sin थीटा इज हाफ लैम्डा। ओके, अब देखो, अब हमको एंगुलर निकालना है। तो ध्यान रखना, ये मैंने जो बताया बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया है, ठीक है? ये आता है एग्जाम में प्रूव करने के लिए। दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा इन this is the condition of maxima in diffraction light. This is the condition of maxima in diffraction of light. ओके, ये प्रूफ करने के लिए आता है एग्जाम में। अब देखो, अब हमको निकालना है एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ इन मैक्सिमा। ओके, तो देखो एंगुलर विड्थ कैसे निकालेंगे?
एंगुलर विड्थ का मतलब होता है थीटा, एंगुलर विड्थ का मतलब थीटा होता है। तो फॉर स्मॉल एंगल, तो देखो स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा जो होगा वो थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। देन a इंटू थीटा इज इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा। तो बताओ थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, व्हाट इज थीटा, n प्लस हाफ, ओके। आगे समझ में, दिस इज द एंगुलर विड्थ। तो ये एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला है, एग्जाम में सब आता है निकालने के लिए, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, तुमसे बोल देगा कि फाइंड आउट द एंगुलर विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा। तो प्राइमरी मैक्सिमा बोल रहा है तो n की जगह 1 रख देना, लैम्डा दिया रहेगा, e की वैल्यू दिया रहेगा, पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। अब अगला अगला देखो, अगला हमें निकालना है लीनियर विड्थ, लीनियर विड्थ ऑफ मैक्सिमा, लीनियर विड्थ ऑफ मैक्सिमा मतलब x निकालना है। ये सामने स्क्रीन पे देखो, ये जो मैंने डायग्राम बनाया, इस डायग्राम में तुम्हें x दिख रहा है, ओके। तो ये x निकालने के लिए हम लोग ट्रायंगल OBC लेंगे, ट्रायंगल OBC दिख रहा है, ओके। तो इस, हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या हो जाएगा, BC अपॉन OC, नो नो नो, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC अपॉन OC, ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, BC अपॉन OC ना। बताओ BC किसके इक्वल है, x के इक्वल है, xn। और OC किसके इक्वल है, ध्यान से देखो, D। तो ये हो जाएगा BC अपॉन OC है, तो दिस इज x अपॉन D, ठीक है। यू नो दैट एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल। तो बताओ थीटा अगर स्मॉल एंगल है तो मीन्स tan थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होगा ना। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन डी, ओके। तो अब यहाँ पे थीटा की जगह x अपॉन डी रख दो। तो बताओ ये दिख रहा है, ये जो येलो कलर से मैंने मार्क किया, तो यहाँ थीटा की जगह x अपॉन डी रख दो। तो x अपॉन डी इज इक्वल टू आ जाएगा n प्लस हाफ लैम्डा बाई ए, लैम्डा बाई ए, ओके। व्हाट इज x, तो बताओ x कितना आएगा। हाँ हाँ, आवाज आ रही मेरी, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है, अच्छा एक मिनट।